analysis part will also be covered by me today only. And then we will be left with only the fund flow, cash flow, and the ratios. So any one of you can just drop a message in your official group that everyone should join for the lecture. Okay, by the time I'll explain, like this PDF is already being shared by Anand sir to you. I hope all of you have this PDF with you. Yes, ma'am. Okay, fine. So we will start like how we prepare the common size statement. As I told you, like we have the various types of the financial statement. But to make the analysis of that, we use various techniques. Either we go for common size statement, comparative statement, ratio analysis, then fund flow and the cash flow. So the most prominent which are being used is the ratios. जो आपको बहुत ज़्यादा aspect में रहता है वो रहता है ratios. And these are the things. The ratios are the question which are being there in the competitive exams also. So common size and comparative. I'll explain like first. Problem number 1. So check out with this numerical. I'll solve on the whiteboard. Okay. So the first part that is given over there is the balance sheet. We have to prepare a common size statement for the balance sheet. Okay, starting with the balance sheet, what we have to do is we have to prepare the same format. Like how we will prepare in the common size statement, what we do is like we start with the first common size balance sheet. We assume the total liabilities or the total assets as 100. Okay, I'll solve for 2018 first, then you will be able to understand. The first thing that is in the balance sheet is the liability part. ठीक है, अभी उस पे क्या किया है? Now you look into this question. What they have done is the total liabilities, that is 2,30,000. They have considered it as 100. That means they have taken this as a base. Is it clear? They have taken this figure as a base. Now, what is given for the equity capital? Equity capital. Okay. So, what is given for the equity capital? Akshata, please mute yourself. Okay. Then, what we have to do is, what is the figure of the equity capital? That is 1 lakh rupees. Okay. Now, you have to calculate the percentage. How you will calculate? 1 lakh. What is your base years? 2,30,000 is your base figure. मैंने बोला ना जो टोटल होता है वो बेस फिगर होता है. अभी इसको डिवाइड करके मुझे बताएगा कोई. Any one of you? Do it quickly. 1 lakh divided by 2,30,000. Quickly, just do it. Any one of you just can calculate it on your mobile only. It's not a very hard and fast. Yeah, tell me, what's the figure? 0.4. 43? 0.4, ma'am. Okay. So this is how we calculate our first figure. Okay, Deepika, please mute yourself. Okay, then come with the next. What we have to calculate, what is the next figure in the, is the preference capital. What is the total for the preference capital? 50,000. Now, 50,000 divided by this base figure,
2,30,000 into 100. What is the amount then? What will be the percentage? Tell me. 21.73. 21.7. 3. Okay. What is the figure for the reserves? Reserves का figure कितना है बेटा? 10,000 rupees. Now what you have to do is you have to divide this 10,000 divided by this 2,30,000 into 100. This will give you the figure for the this percentage. So this percentage is around 4.35. Okay. So this way we calculate the whole liabilities. Now I'll explain how we will calculate the. अभी हमने ये 2018 का calculate किया. Same way we have to calculate for the 2019. Okay. Same उसी में बेटा हम बनाते हैं because the screen is not as such big, so that is why I'm showing this. But उसमें हम कैसे बनाते हैं? Same format जैसे आपको दिया है. 18 का पहले बनाएंगे, उसका percentage निकालेंगे. Same way we will do for the 2019. So what is the equity capital? 1,65,000. Okay. Now the total of liability is 3,40,000. Okay. This is your base figure. जो इसका total होता है उसको हम base लेते हैं. तो अभी कितना आया? 1,65,000 divided by 3,40,000 into 100. So what is the figure? 48.5. Clear? Yes, sir. So this way we will calculate for 18 then 19. Same we'll do for the asset side. Now coming on to the asset sides, what is given for the assets? Assets के लिए क्या दिया है बेटा? 18 में सबसे पहले है आपका fixed asset. What is the amount? 1,20,000. Now what is the total of total assets? That is 2,30,000. Now we will take this as 100. Same way 1,20,000 divided by 2,30,000 into 100. Okay. This will give you the figure for the fixed assets. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now I'll tell you one thing. इसी में बेटा वो आपको क्या पूछ सकते हैं? अभी इसमें उसने आपको बोला prepare the common size statement. ठीक है. अगर कई बार क्वेश्चन में कैसे रहता है, they will give you a figure. Okay, common size statement आपको दिया, percentage calculate दिया. Now at the end you have to give the conclusion. I mean what you can see from the balance sheet. That is known as the क्या ट्रेंड चल रहा था. ओके. ट्रेंड एनालिसिस भी मैं इसी क्वेश्चन में कवर करती हूँ. कैसे? अभी अगर आप देखो ट्रेंड में बेटा लाइबिलिटी साइड में आप देखो ट्रेंड क्या था. इक्विटी कैपिटल ऑलमोस्ट सेम है, प्रेफरेंस कैपिटल उतना ही है और कुछ मेजर चेंज किसी में नहीं आया. ओके. बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा उतने का उतना है. So what is the prominent change is in the equity capital. तो आप बेटा conclusion में क्या लिखोगे? Equity capital, ठीक है ना? Equity capital आपकी बेटा increase हुई है ना? Increased. और बेटा किसी में कुछ ज्यादा change आया? Change in the sense कि ये नहीं 5,000 10,000 को नहीं, मतलब थोड़ा major change आएगा then we consider it. Okay? अभी सबसे ज्यादा देखो liability साइड में किसके फर्क आया है? इक्विटी कैपिटल में. Now you move on to the asset side. Now what you see is assets में भी बेटा सबसे ज्यादा चेंज किस में आया है? ज्यादा चेंज आपका किस में आया? फिक्स्ड एसेट में तो नहीं आया. करंट एसेट में मेजर चेंजेस हैं आपकी. Means everything is increasing. अगर आप देखो एसेट साइड में then you what you can write? Assets are increasing. इसमें आप बेटा फिक्स्ड एसेट्स भी ले सकते हो एंड करंट एसेट भी लिख सकते हो. नाउ आई टेल यू हाउ. अभी इसमें क्या रहता है? द कंक्लूजन इज entirely yours. What you can see it and what you can write it, that is your interpretation, like how you interpreted the question. Okay, that is not something that is being learned.
दिस इज समथिंग जो आपने देखा उस क्वेश्चन को, आपको उसपे से जो एनालिसिस आ रहा था, आप उसमें से क्या डिपिक्ट कर सकते थे, आप वो वहां पे एनालिसिस में लिखोगे, ठीक है। बट फिगर ठीक होना चाहिए। अगर आपने लिखा कि फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें लिखा है कि सिर्फ करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो हमें वही लिखना है। नो, you can always write that the fixed asset has also increased, but the prominent change which is there is in the current asset. Okay, so that way you can do it. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Now same way in problem number 2, just a second. देखो, इसी में देखो बेटा, अभी प्रॉब्लम नंबर 2 में I'll give you the explanation over here only, because calculation कैसी है वो समझ में आ गया बेटा आपको? Do I need to solve this question again, or you are already understood this thing? Tell me once. No, ma'am, समझ गया. Okay. अभी बेटा वो था कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये हमारा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम 100 किसको मानते हैं? हमारे नेट सेल्स को। समझ में आया? जो हमारी नेट सेल्स की फिगर है दैट इज 15,000, उसको हमने 100 एज्यूम किया, ठीक है। अभी इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा? सबसे पहले ग्रॉस सेल की बता रही हूँ, 15,300 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 100। कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा बेटा फिगर? सिंपल करके बता दो मुझे। 1530 डिवाइडेड बाय 15। Any one of you, just please solve it. सिंपल बेटा, एक आंसर ही बताना है। 153 डिवाइडेड बाय 15, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बता दो। $10.2. 153 divided by 15, ma'am, right now? हाँ बेटा, 10.2. 10.2. Okay, so what they have written is 102. I'll tell you how. Because 150 तो आपको समझा होगा ना उसमें। I'll tell you, 1530 into 100 divided by 15,000, ठीक है। अब हमारा आया 10.2 into 0, कितना हो गया? हो गया 102, हो गया 102। Yes, ma'am. So this is how this 102 figure is there. Is it clear now? Now same way you have to start with the second thing, that is there is return, that is 300। बेस फिगर हमारा सेम है बेटा, 15,000 into 100। Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. जैसे उसमें बेटा बेस फिगर हम लेते हैं टोटल लाइबिलिटीज या टोटल एसेट्स को, इसमें हमने लिया है किसको? हमारी इसको फिगर को, नेट सेल्स को। ओके, now I tell you how we have to conclude the thing. Sorry. Okay, now what we can conclude from this figure, like see all the changes, if you can see is अभी 15,300 आपका ग्रॉस सेल था, अभी कितना हो गया? 18,000। ऑलमोस्ट रिटर्न का सेम है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, ठीक है। एंड देन कम्स द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके, देन इज ऑपरेटिंग इनकम एंड ये वो। अभी इसका ट्रेंड देख के मुझे एक बात बताओ बेटा, किसमें चेंजेस ज्यादा है? टेल मी। एनी वन ऑफ यू? अच्छा, जो नीचे कमेंट किया है वो ठीक है या वो गलत है, वो बताओ मुझे। जो नीचे कमेंट किया है, दैट कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस व्हिच हैज रिजल्टेड increase in income from operations and net profit, is this conclusion correct or not? बेटा सही है या गलत है, उतना तो बताओगे।
Any one of you? Rahul, Omkar, Yeah. tell Yes, me. Conclusion ठीक है जो नीचे दिया है? Pradnya, if the conclusion which is given at the end of the question, is it correct or not? Just answer me a simple question. yes ma'am, सही है. अच्छा, करेक्ट है मैम. आपको कहाँ से बेटा इसमें ये दिख रहा है कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस कम हुए, मुझे वो बताओगे? क्योंकि मुझे तो कहीं पे एक्सपेंसेस कम हुए नहीं नजर आ रहे. 2017 में 1500 था, अभी 1700 हुआ. सेल्स एक्सपेंसेस 3000 थे, अभी 3300 हो गए. देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1400 थे, अभी 2885 हो गए. कम कहाँ पे हुए बेटा, मुझे वो बताओगे? टेल मी, कहाँ पे कम दिख रहे हैं आपको, मुझे वो वो बताएगा मैम कोई? हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट में कम हो रहा है ना. 7,885 रुपीज वहाँ पे दिया है. कौन सा बेटा फिगर बोल रहे हो? हाँ, 7,885, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका. आई मीन कहाँ पे कम हो रहा है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके ये कहाँ कम हो रहा है? 9100 है, वो 10,000 है. कम तो कुछ भी नहीं हो रहा बेटा. The only thing that I can see in this question is that the sales has increased. That's why the income has increased. Gross sales has increased. If you can see, gross sales बेटा देखो 15,300 से 18,360 पे increase हुई है. Although expenses has increased because कैसे है कि उसका कैसे परसेंटेज में उन्होंने देखा है. समझ में आया? फिगर्स Yes. में नहीं देखा. दैट इज द थिंग यू हैव टू टेल. ओके, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ. अभी देखो मैं आज का बताती हूँ. देखो जैसे बेटा पहले जो एक्सपेंसेस थे, अभी वो थे पहले 10%, यहाँ पे हो गए 9.43. फिर सेल्स एक्सपेंसेस 20% से वो कितने हो गए 18%. देन यू कैन सी द नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑल्दो दे हैव इंक्रीज, बट परसेंटेज में जो एक्सपेंसेस है वो कम हुए हैं. ठीक है, टोटल सेल्स बढ़ने के साथ उसकी परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस कम हुई है. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Okay. Now this was the common size statement. Now we will prepare the common this comparative statement. Just a second, I'll start with my whiteboard. Problem number 3. So what is given in the question is the figure for 2018 and for 2019. Okay. Now we will first start with the year, that is 2019. अभी उसमें बेटा क्या दिया है आपको इस क्वेश्चन में? That the revenue is given for the operations, then other income, expenses, and the income tax. Okay. How we calculate is this? हमें इसमें basically just a second. We need 4 columns in this. Okay. 1, 2, 3, and 4. Okay. सबसे पहले बेटा आपकी absolute figures रहती है. That means which are given in your question. Then come the how much change is being there. Okay. For the year 2018, then is for the 19, then how much change in rupees is there, how much change in percentage is there. The first thing that is given is the revenue. Revenue from operations, how much is there in 2018? 40 lakh.
And how much revenue from operations in 2019 is given? 60 lakh. How much change is there, beta? कितना change है? 40 lakh और 60 lakh में कितना change हुआ? 20 lakh. 20 lakh. 20 lakh. So how much percentage is being changed? कितना percent change हुआ? How will you calculate this percentage? Tell me. परसेंटेज में बेटा हम हमेशा जो बेस ईयर होता है वो जो पुराना होता है उसको लेते हैं, ठीक है। अभी कैसे निकाला उसने? 20 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100, कितना आ गया? आया 50%। 50%. ठीक है, दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, just a second. Okay, now what you have to do is for the second part, now what is given for the other incomes? Other income, other income. For 2018, it is 8 lakh rupees. And what is given for 2019 is 7 lakh and 20,000. So how much change is being there? 80,000. Okay. How will calculate the percentage? 80,000 divided by this base year, 8 lakh into 100%. So that is equal to 10%. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So this is how the comparative statement is being done for the profit and loss. Now we will same way we have to do the comparative statement for the profit and loss account. I think I have one question I have done. So the question lies like profit and loss का आप कैसे calculate? First, you will revenue का आपने लिख लिया. The procedure is same. Okay. रेवेन्यू में से आप क्या लेस करोगे या ऐड करोगे? पहले आप अदर इनकम्स ऐड करोगे उसमें. Okay, then you will deduct the expenses. The format is being given. I just show you like how we calculate all these things. रेवेन्यू और अदर इनकम को ऐड करके एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो वो आपका क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. देन डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम इट, यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, so I show you like how we have to do with the comparative statement if it is given for the profit and loss account. Now the same question, comparative statement, profit, you can I think comparative income statement and profit. Okay, problem number 1, it have both comparative income statement और balance sheet, उसमें दोनों है जो भी next question है. I'll show you like how we will proceed with this question. Now first you have to calculate the comparative income statement. Comparative income statement. Okay. So for the 2017, then 18, then the change is how much, and then the percentage change. The first thing that is there is 9, that is net sales. Net sales कितना है बेटा उसमें? 900. And 2018 में कितना है? 1050. So how much change is there beta? 150. All of you have the question with you, na? Yes, ma'am. Okay. So this is the change, 150. Now 150, what is a base year? That is 900 into 100. This will be our percentage. That is 16.67. Now moving on to the next, what we do is we have to subtract the cost of goods sold. Cost of goods sold beta कितना दिया है? 650, 850. What is the change? 200. Okay. So 200 divided by 650
into 100, यहाँ पे आपका चेंज आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। नाउ सेम वे वी हैव टू मेक अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए बेटा कैसे बनाओगे, सेम वे से 17, 18, देन द चेंज, कितना चेंज आया है एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ चेंज इज देयर। द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर इज द करंट एसेट। सबसे पहले क्या है आपकी एसेट्स में, करंट एसेट्स। कितना दिया है बेटा करंट एसेट्स आपको? करंट एसेट्स का पार्ट पता है ना आपको बेटा? Debtors, stocks, bill receivable, they are the part of your current assets only. So what is given is the stock. How much stock is being given? 400. And for 2018, how much stock is being there? 500. What is the change? 100. 100 divided by 400. And what is the percentage is? This will be your answer. That is around 25%. Is it clear? पहले हमने बेटा करंट एसेट्स की चेंज देखी, फिर फिक्स्ड एसेट्स की चेंज निकाली। फिक्स्ड एसेट्स में अभी करंट एसेट में नेक्स्ट क्या आएगा मुझे बताओ? डेटर्स के बाद क्या आएगा बेटा? स्टॉक के बाद क्या आएगा बेटा? कैश आएगा। दैट इज 450, 490. हाउ मच इज द चेंज? 40 डिवाइडेड बाय 450 into 100. क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now, if you can see in this question, we will calculate the whole changes that are being there in the balance sheet as well as the income statement. On the basis of that, what we have to calculate is how much change is being there. Okay. They may give you how much change is being there. So that is the thing. Always remember that we take the base year for the year that is our previous year. Base year आपका कौन सा रहता है बेटा हमेशा? Previous year. Is it clear? Is it clear? What is your base year? Previous year. Yes, ma'am. Okay. Now we will have to do one more numerical. Let me take with the trend analysis. Now what we have to do is for the trend analysis. Trend analysis का question है बेटा आपके पास. Now we will start with that. Problem number 1. Okay. See in this question what is given is land and building is 2,40,24 lakh. ये आपका second PDF होगा बेटा. Yes, ma'am. Okay. अभी देखो बेटा इसमें लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका 24 लाख. दैट इज इन द ईयर 2016. हाउ मच चेंज इज देयर? अभी 24 लाख से 2017 में कितना हो गया? 30 लाख. एंड 2018 में कितना हो गया वो? 34 लाख. ठीक है. सेम वे वी हैव टू लुक इनटू लाइक व्हाट इज द ट्रेंड, लाइक हाउ द थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं बेटा, देखो उसमें क्वेश्चन में ही उसने आपको क्या लिखा है? टेक 2016 एज द बेस ईयर. ठीक है. इसमें ऑब्वियसली अगर नहीं भी दिया होता, जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है वो हमारा बेस ईयर होता है. इज इट क्लियर? नाउ यू कैलकुलेट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग के लिए देखो बेटा सबसे पहले कितना था 2017 में? 30 लाख. बेस कितना है बेटा? 24 लाख into 100. Okay. So what is the percentage? 125. ठीक है. अभी बेटा 2018 का कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 34 लाख divided by 24 lakh into 100. What is the change? 141.67. ठीक है. ये हो गया. इसी तरह बेटा अगर आप चेंज देखते जाओगे, सभी की हमें देखनी है. लैंड एंड बिल्डिंग की जैसे कैलकुलेट की, सेम वे वी कैलकुलेट फॉर द अदर्स. ठीक है. अभी हम कैलकुलेट करेंगे प्लांट एंड बिल्डिंग की. नाउ टेल मी हाउ वी हैव टू डू फॉर द प्लांट एंड बिल्डिंग. कितना था बेटा उसमें 2017 में?
20 लाख 20 लाख इंटू 100 सेम ही है, तो आ गया 100%। Yes. अभी उसके बाद देखो बेटा 18 में कितना है, 24 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 दैट इज 120%। ठीक है, अभी मैं आपको ये इसमें बताती हूँ, हमने सबका कैलकुलेट किया, स्टॉक का कैलकुलेट किया, सन्ड्री डेटर्स का कैलकुलेट किया, कैश जो भी हमें दिया था सबका हमने कैलकुलेट किया। नाउ वी विल फाइंड आउट द कंक्लूजन। अभी लैंड एंड बिल्डिंग बेटा कैसे था, 125 से 141। So what is the trend? That the land and building has increased from 125 to 141%. Okay? Trend मतलब क्या चल रहा है, क्या कैसी चेंज आ रही है, that you have to depict. तो एक तो आपका बेटा ये हो गया। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी में बेटा क्या चेंज आया है, प्लांट एंड मशीनरी में बेटा क्या चेंज आया है, 100 से 120% हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, अभी आप देखो करंट एसेट्स में बेटा स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, ये क्या नाम है, कैश एंड बैंक। इसमें देखो आप क्या लिख सकते हो, एवरीथिंग इन कैश करंट एसेट्स में बेटा, करंट एसेट्स में हमारा क्या क्या आएगा, स्टॉक आएगा, ठीक है, डेटर्स आएंगे, बिल रिसीवेबल आएगा और कैश आएगा। ठीक है, अभी स्टॉक का बेटा देखो, स्टॉक क्या है, 133 से 116 नीचे आ गया। Then is debtors. Debtors क्या है, 125 से 162%. So they have increased. What is for the bill receivable? 150% से 250%. So they have obviously increased. Now cash 120 से 80%. That has decreased. तो आप current assets का अलग अलग नहीं लिखोगे, fixed asset का एक में लिखोगे. That fixed asset has increased from 100 to 120%. All the current asset in current assets except debtors and bill receivable, all the current assets has decreased. ये आपका ट्रेंड हो गया ना बेटा, कि क्या चेंज आया। देखो अभी कैश एंड बैंक, कैश को छोड़ दो और स्टॉक को छोड़ दो, बाकी सब चीजें आपकी क्या है, वो तो आप इंक्रीज हुई है ना, स्टॉक को और डेटर्स को छोड़, कैश को छोड़ के। सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट द ट्रेंड, लाइक व्हाट इज द ट्रेंड फॉर दैट थिंग। ओके, is it clear to everyone? Yes, ma'am. Now Yes, we will ma'am. start. Yeah. अभी सेम बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 में अगर आप देखो, अभी इसमें आपको सिंपल एक क्वेश्चन दिया है और उसने आपको क्या बोला है कि आपको इसमें, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं ये पीडीएफ शेयर करती Ma'am, already we have that PDF. हूँ, मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी, मैं ये बोल रही थी बेटा। Okay, ठीक है, okay, got it. Yes, yes. जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि इसमें कैसे है, ट्रेंड आपको तभी समझेगा ना बेटा, फर्स्ट में तो कैलकुलेशंस करनी थी, सेकंड में कैसे है, अभी आपको जो एग्जाम में अगर वो पूछते हैं तो आपको सिंपल रहेगा बेटा, कोई क्वेश्चन दे देंगे उसका ट्रेंड ऑलरेडी गिवन रहेगा। ठीक है, आपको सिंपल उसका कंक्लूजन लिखना है। अभी इस वाले क्वेश्चन में हम वही करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो बेटा इसमें क्या दिया है आपको, सेल्स, सेल्स का अगर आप देखो बेटा क्या चेंज आया है, पहले 2012 में कितना था, 60 लाख, 18 में हो गया 54, फिर 75, फिर 90 लाख। नाउ यू कैन सी दैट द सेल्स हैज इंक्रीज्ड इन ऑल द इयर्स। बेस ईयर हमने 2012 माना, सभी में बढ़ा है, सिर्फ 2013-14 में नहीं बढ़ा। ठीक है ना, ये ट्रेंड हुआ ना, दैट द सेल्स हैज इंक्रीज्ड इन ऑल द इयर्स एक्सेप्ट 2013। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अभी बेटा सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स में, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स का अभी क्या है आपका, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन देखो, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट कितना था बेटा फर्स्ट ईयर में, 20, फिर 16, फिर 30, फिर 40, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी सब में इंक्रीज हुआ है एक्सेप्ट फॉर द ईयर 2013 एंड 14। क्लियर?
ग्रॉस प्रॉफिट भी बेटा आपका इंक्रीज किया हुआ ना, तो ये आपका इंटरप्रिटेशन रहता है कि कितना इंक्रीज हुआ। सपोज अभी 30 लाख का है, तो 30 लाख से कितना वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। अभी इसके अलावा हमारा और क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा बेटा और क्या था हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख के बताओ, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, टेल मी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा क्लियर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, सिंपल देख के बताना ही तो है, इंक्रीज हो रहे हैं। यस मैम, 14 में कम हुआ है, बाकी फिर बढ़ा है सब में ऑपरेटिंग। कम हुआ है ऑपरेटिंग 14 में, 14 हाँ 15 में, उसके बाद, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी मैं बाकी 13 में, इसमें बढ़ा हुआ है। हाँ। सो व्हाट वी मैम कैन ऐसा कंक्लूड, क्यों चेंज हुआ है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस? दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन बेटा, ऐसा कुछ वो नहीं है, ये सिंपल आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, उन्होंने आपको ट्रेंड के लिए पूछा है, ये कैलकुलेशन हमने नहीं की बेटा, सिंपल एक क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज मतलब डिक्रीज हुए हैं, मे बी दे हैव शट डाउन समथिंग ना, कई बार कैसे होता है टेम्परेरी शट डाउन होता है, तब भी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं ना। यस तो यस आप, हाँ, तो इसमें आपको उसने क्या पूछा है कि क्या है कंक्लूजन आपका क्या रहेगा, दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑल्दो दे हैव इंक्रीज्ड, अगर हम 2012 से देखें तो दे हैव इंक्रीज्ड, बट फॉर द ईयर 2014 एंड 15 दे हैव डिक्रीज्ड, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा 15 से 32 लाख हुआ, दैट मीन अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया है, बट is it increasing continuously? No, but in 2013-14 this has decreased, ठीक है। this way you have to write down your conclusions, is it clear? यस मैम। कंक्लूजन्स कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं रहती, दे आर लाइक कि आपको उसी टाइम पे देख के क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख सकते हो, दैट इज योर पर्सन, यू कैन से योर पर्सनल रहता है, ऐसा नहीं है कि वो जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है, यू कैन डिपिक्ट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर, आई मीन तुमको क्या समझ में आ रहा है तुम वो बता सकते हो, दैट इज द ट्रेंड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, that is the problem number 3rd. Now in this figure what they have given you is the sales, wages, bad debt and the profit after tax. Now what you are required to calculate in this thing is like what is the trend percentage. So in this question 2015 will be our base year, सबसे पुराना कौन सा 2015। अगर अभी हम इसमें देखेंगे बेटा तो हमें सबका क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। I'll show you how we calculate this now. Okay, fine. First we will calculate for sales. सेल्स कितना है बेटा आपका 2016 में हम कैलकुलेट करने वाले हैं। 2016 में सेल कितना था 8,30,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख into 100. This way we can calculate, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। नाउ सेम यू हैव टू डू फॉर द 2017. What is the figure for this? 2017 के लिए कितना है, टेल मी, सेल्स का फिगर कितना है बेटा 2017 के लिए, 8,50,000 है। What is your base figure? 7 lakh into 100. So this will be your base figure. Okay. Now on the basis of this question what we can see the trend is being there. अभी ट्रेंड क्या है बेटा, सेल्स का ट्रेंड देख के मुझे बताओ, what is your conclusion? सेल्स का ट्रेंड देख के मुझे बताओ 2015 से लेके 18 तक क्या ट्रेंड रहा, टेल मी। सेल्स का, सिंपल सेल्स का बेटा बताओ 2015 से लेके 18 तक में क्या ट्रेंड है, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। Increasing. So how we can write is that the sales are being increased from 2015 to 2018. Now coming on to the wages. Wages का बेटा क्या दिया है हमें, wages में कैसे था,
अगर आप देखो वेजेस इंक्रीज हुए या नहीं हुए? यस मैम, इंक्रीज हुए। ठीक है। सेम वे व्हाट आर द डेट? बैड डेट्स, बैड डेट्स हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट डबल। यस। पहले में अगर 100 है तो 2018 में 235% है। सो दे हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा क्या है? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? इंक्रीज ही हुआ है ना। हाँ, इंक्रीज हुआ है। सो यू कैन राइट ऑल द प्रॉफिट और टैक्स has also increased, but bad debts has also increased almost twice the figure that is in the 2015. जब भी बेटा ट्रेंड लिखते हो ना, ऐसा सिंपल नहीं लिखना इट इज इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। नो, यू राइट डाउन ओके दे हैव इंक्रीज्ड by the extent of 200%, by the extent of they have doubled itself. So write down your trend or whatever conclusion you are writing in a very fine manner. Okay, is it clear? सिंपल लिखो, बट कैसे है वो कंक्लूजन अच्छे से लिखो बेटा, यस मैम। जो भी आपका ट्रेंड एनालिसिस का रहता है। नाउ वन थिंग आई विल टेल यू, लाइक वी हैव टू स्टार्ट विद अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए उसका एक पूरा प्रोसीजर रहता है। टेल यू हाउ, लाइक फॉर द फंड फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले जो हम बनाते हैं, अगर कभी भी हमें कैलकुलेट करना रहता है, द फर्स्ट थिंग वी कैलकुलेट इज द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट आर द पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल? यू नीड टू रिमेंबर दोस्त कि वर्किंग कैपिटल के आपके क्या क्या पार्ट है। वर्किंग कैपिटल में आपका क्या क्या आता है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बेटा? कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, एंड करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? Bills payable. हाँ, बिल्स पेबल, एंड बिल पेबल। creditors, bank overdraft, expenses outstanding, they will come in your working capital. So whenever we are calculating a fund flow statement, we prepare various types of, उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स लगती हैं। फंड फ्लो बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक परफॉर्मा जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल। आई विल शो दैट पीडीएफ विद यू। I think I have wrongly done this. हाँ, यही था, ठीक है। इसमें देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन से पहले आपको परफॉर्मा बनाती हूँ, ठीक है। जब भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, दिस इज अ परफॉर्मा विच वी हैव टू फॉलो। ओके, फॉर दिस now listen to me very carefully. The first thing we will start in our fund flow statement will be our changes in the working capital. सो वर्किंग कैपिटल में उसने आपको करंट एसेट्स दे दिए, करंट लाइबिलिटीज दे दिए। हाउ यू राइट इज प्रीवियस ईयर में क्या है, करंट ईयर में क्या है। देन व्हाट इज द चेंज? आई मीन इधर इट इज इंक्रीजिंग और देयर इज डिक्रीज। अगर करंट एसेट्स और ये वो सबका आपको चेंज लिखना है, किसमें कितना आपका चेंज आया है। देन at the end, after that you have written okay this is the change which is there in the increase is being there, or you can say decrease कितना आया है आपका working capital में। after this you have to calculate the fund from operation, like how much funds are being generated, कितना funds generate हुआ है, you have to calculate that. That is known as the fund from operations. अभी fund from operations में क्या क्या item रहने वाली हैं? These are basically the non-cash item. I will give you this PDF today already, that's why I have shared, because you need to remember the format. Because once the format is clear, only then you can solve the numerical. So what is for there for the fund from operation? The first we have to write the all the non-cash items. Non-cash items like depreciation, goodwill, discount, provision for taxation, they come under the heading of the non-cash items.
तो वो सब आपको इस साइड में लिखनी है, डेबिट साइड में। एंड फॉर द क्रेडिट साइड व्हाट यू हैव टू रिटर्न इज, क्या लिखना रहता है आपका, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग कैसे रहता है, डिविडेंड, रिफंड ऑफ टैक्स, ये सब आपकी आइटम्स मैंने इसीलिए आपको कंक्लूजन में दे दिया है ताकि आपको समझ में आएगा कौन सी आइटम इसमें लेनी है। देन there are various types of working notes which you have to provide basically made with this। क्या क्या वर्किंग नोट रहेंगे, पहले तो 2 फॉर्मेट आप बनाओगे, वर्किंग कैपिटल का, चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल, then is a fund from operation, the third that you have to do is the purchase or sale of fixed asset, means कि आपको कोई भी fixed asset दिया, land and building, plant and machinery, whatsoever is given, उसके लिए आपको एक परफॉर्मा ये बनाना ही पड़ेगा। इसमें कैसे रहता है, आई शो टेल यू, जब भी लैंड एंड बिल्डिंग रहता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या रहता है, ओपनिंग फिगर आपका किस साइड आता है, डेबिट साइड में। सो यू विल राइट टू बैलेंस बीडी, दैट इज योर ओपनिंग फिगर, ओके। एंड क्रेडिट साइड में एट द एंड बाय बैलेंस सीडी, दैट मींस एट द एंड इज योर क्लोजिंग फिगर। अगर आपने कुछ भी परचेज किया है वो आपका डेबिट साइड पे आएगा, कुछ भी सेल है वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, या अगर आपका कुछ डेप्रिसिएशन का आपने प्रोविजन दिया है वो भी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। सो द नेक्स्ट दैट इज देयर इज, जब आप बैलेंस करने लगोगे 2 फिगर्स को, देखो स्टार्टिंग आपका हो गया बैलेंस यहाँ पे, एंड ये हो गया आपका क्लोजिंग फिगर, जो भी आपको दिया होगा बैलेंस। अगर मान लो स्टार्टिंग में दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी 10,000 है और एंड में दिया है 20,000 है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आपका डेप्रिसिएशन था उस ईयर में 5,000, तो आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर उसमें उसने बोला कि मैंने परचेज कर लिया कितना मशीन, मैंने परचेज किया मशीनरी 2,000 का। अभी यू नो द रूल, डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करना है, दिस इज 25,000, दिस इज 12,000, तो जो बैलेंस फिगर आएगी वो क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी। ठीक है, अगर बेटा ये वाली साइड कम है और ये ज्यादा है तो बैलेंस फिगर कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, दैट इज योर प्रॉफिट। और अगर यहाँ पे आएगी वो क्या होगा आपका, सेल। समझ में आ गया। देन यू विल राइट बाय बैंक, अगर इस साइड आना है, इस साइड अगर आएगा फिगर तो क्या आएगा, टू बैंक। अगर मान लो आपका यहाँ पे 25,000 था, यहाँ पे आपका कितना था 12,000, तो आपने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, टू बैंक कितना 13,000। क्लियर, इज इट क्लियर, यस मैम। ओके फाइन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसी तरह से जैसे आपने फिक्स्ड एसेट बनाया, देन यू हैव टू कैलकुलेट द अदर थिंग, दैट इज देयर इज द प्रपोज्ड डिविडेंड। सो द प्रपोज्ड डिविडेंड क्या रहता है आपका, लाइबिलिटी रहता है, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अभी इसके लिए एक कॉलम बनता है, डेबिट, जब भी लैंड एंड बिल्डिंग है वो डेबिट से शुरू हो रहा है, इसका कहां से शुरू होगा, लाइबिलिटी है तो कहां से शुरू होगा, क्रेडिट साइड से। एक चीज बेटा याद रखना, जब भी कोई एसेट साइड की चीज होती है वो डेबिट से स्टार्ट होती है, और जो भी आपकी चीज लाइबिलिटी है वो कहां से शुरू होगी, क्रेडिट साइड। देखो बाय बैलेंस बीडी से शुरू होगी, जितना भी है, मान लो अगर आपका बैलेंस था 5,000 से आपने डिविडेंड शुरू किया, क्लोजिंग फिगर दिया आपको 7,000, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अभी इन दोनों को मैच करने के लिए क्या चाहिए आपको, 2,000 रुपीज यहाँ पे, तो वो क्या हो गया आपका बाय एडजस्टेड P&L। दैट मीन्स कि आपने प्रोविजन में की, आपने एक प्रोविजन बनाई 2,000 रुपए की, अगर इस साइड पे आएगा, ठीक है। बट वही अगर इस साइड में आता है, दैट मीन्स आपने पेमेंट कर दी है डिविडेंड की, ठीक है। इस साइड में आएगा, दैट मीन्स प्रोविजन इज बीइंग मेड, दिस साइड दैट मीन्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बीइंग डन। सो यू नीड टू बेसिकली रिमेंबर दिस फॉर्मेट ओनली। अगर ये फॉर्मेट याद होगा तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा। आज मैं सिर्फ ये फॉर्मेट ही आपको एक्सप्लेन करूंगी इसीलिए। Then is a provision for taxation. How you will have to do for the provision for taxation? Same way. Provision for taxation क्या रहेगा आपका, कहां से शुरू होगा, स्टार्टिंग फिगर कहाँ आएगी बेटा, क्रेडिट साइड में आएगी, लाइबिलिटी है ना, क्लोजिंग फिगर यहाँ पे आएगी।
नाउ इस साइड में फिगर आई, दैट मीन्स आपने प्रोविजन बनाया उसका, ठीक है। अगर आपकी ये साइड कम है, ये ज्यादा कम है और ये ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा आपका एडजस्टिंग फिगर, उसको क्या बोलेंगे, बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस फिगर का क्या नाम होगा, प्रोविजन मेड, दैट मीन यू हैव मेड अ प्रोविजन। अदरवाइज यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स यू हैव पेड द टैक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next that is there is undistributed reserves and funds। तो उसके लिए क्या रहता है, स्टार्टिंग आपका फिर क्रेडिट से होगा, जो भी लाइबिलिटी है उसका स्टार्टिंग आपका क्रेडिट होता है, यहाँ पे आपका डेबिट हो गया। देन अगर ये फिगर कम है तो न्यू रिजर्व, नहीं तो हमने रिजर्व को यूटिलाइज कर लिया। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ दिस इज डन फॉर द फंड फ्लो स्टेटमेंट। नाउ सी what is a performer for the fund flow statement। देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट में बेटा आपकी दो साइड्स रहेंगी, एक तो सोर्सेज जहां से आपको पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा बेटा, हमें शेयर्स हमने इशू कर दिए वहां से पैसा आएगा, डिवेंचर इशू किए वहां से आएगा। देन इज रेजिंग ऑफ द टर्म लोन्स, मतलब अगर आपने कोई लोन रेज किए वहां से भी आपको आएगा। नाउ देखो अभी ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कहाँ से आएंगे, जो हम वर्किंग नोट बनाए, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ठीक है, अभी देखो बेटा इसमें अगर आप देखोगे तो फिर क्या है आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो हमने भी फिक्स्ड एसेट का कॉलम बनाया वहां से आएगा ना एडजस्टिंग फिगर, वो यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड। देन फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसके लिए हमने एक परफॉर्मा बनाया। देन इज सेल ऑफ अदर, मीन्स जो ये कैलकुलेशन हम इन वर्किंग नोट से करेंगे फंड फ्लो में वो फिगर्स आएंगी, ठीक है। देन एप्लीकेशंस मीन वेयर यू हैव अप्लाइड दैट फंड्स, वो आपके फंड्स आपने कहाँ पे यूज किए हैं। फर्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, देन इज रिडम्पशन ऑफ द डेबिट डिवेंचर्स, सो बेसिकली वेयर यू आर यूजिंग योर फंड्स। देन कम्स द परचेज ऑफ अदर एसेट्स, मीन्स कि वो बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड एसेट्स की आपकी क्रेडिट साइड पे आनी, आई मीन सोर्स की साइड पे आनी है कि इस साइड पे आनी है, ठीक है। वो हमारी कहाँ से आएगी, जो हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे, जो मैंने आपको परफॉर्मा दिया है। Now, this is a performer which is I have told you. Now, changes in the working capital, you know already what is the capital, working capital कितना आपका कैसे हम calculate करते हैं, क्योंकि हमें already पता है हमारे पास क्या क्या working capital के अंडर आता है, ठीक है। This is your performer for the fund flow statement. If you have any doubt in this, you can ask me, because once I start with the numerical, you need to remember this performer. Only then you will be able to understand this thing. If the performer is being clear to you all, Yes, ma'am. ठीक है। परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का आपको समझ आ गया। अगर हमारी बेटा देखो ये साइड की फिगर हम बैलेंसिंग फिगर लेंगे, दैट विल बी आवर सेल्स। अगर यहाँ पे एडजस्टेड फिगर आई, दैट मीन्स इट इज बेसिकली अ लॉस ऑन सेल। एंड इस साइड में आएगी, दैट मीन्स यू हैव परचेज समथिंग, ठीक है। यहाँ पे परचेज की आती है, यहाँ पे सेल की आती है। सो रिमेंबर दिस, स्पेशली you need to basically, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो always remember whenever we have a asset, we start from debit side, and whenever we have, जैसे assets, fixed asset हमारी क्या है, asset है, तो इसकी एंट्री कहाँ से शुरू होगी, ओपनिंग फिगर की हमेशा डेबिट साइड से। बट जो भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इन द सेंस हमारा इनकम टैक्स, हमारा प्रपोज डिविडेंड, उसकी एंट्री कहाँ से शुरू होती है, क्रेडिट साइड से। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। Now, what are the non-operating incomes? You need to remember these things. Is first when we have to calculate the thing that is there is like you have to start with the adjusted P&L. After that, you have to move for the fixed assets. Then you have to calculate the ये पहले सबसे पहले फंड फ्लो के टाइम पे बेटा सबसे पहले क्या आपका बनेगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन
fund from operation, then these working note. Only then you can perform the numerical. समझ में आया? Yes, ma'am. I hope performa is being clear. That is why I have specially spent this time for this, so that before starting with the numerical, you should understand this performa, because उसके बिना आपको समझेगा नहीं बेटा कि कैसे किया है हमने. फंड फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, तो उसको समझने के लिए ये सब हमें पहले बनाना पड़ेगा. वर्किंग कैपिटल की चेंजेस क्या है, फंड कहाँ से आ रहा है. अभी सिंपल देखो, अगर हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस बना ली, दैट मींस हमने सारे के सारे जो हमारे करंट एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो इसमें इंक्लूड कर लिए. शॉर्ट टर्म के सारी चेंजेस किस में आ गई, वर्किंग कैपिटल में. एंड देन इज द एडजस्टेड P&L, जिसमें हमारी जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, दैट मींस जहां से हमें फंड्स आ रहे हैं या यूज हो रहे हैं, वो इसमें आ गया एडजस्टेड P&L. देन वी हैव द वर्किंग नोट्स कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग्स, प्रोविजन, टैक्सेशन, वो हम कैसे यूज कर रहे हैं. ओके So this is the numerical which I'll take in my next lecture. Okay. Today I'll just explain you this question. You want to ask me something, Mayura? I mean, you want to ask me something? That's why you have unmuted yourself, or it's by default here? Ma'am, I'll ask tomorrow. I'll read first this, then. हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन बेटा एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉल्व नहीं कर रही. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ कि कैसे हमें करना होता है. पूरा का पूरा न्यूमेरिकल का मैं सॉल्व करके आपको बाद में ही दिखाने वाली हूँ. ठीक है. Now you see in this what we have to calculate. देखो अभी इसमें कैसे रहेगा. देखो बेटा, डेप्रिसिएशन नीचे दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, मींस हमें एक डिविडेंड का बनाना है, एक प्लांट एंड लैंड का बनाना है. मतलब कौन कौन से वर्किंग नोट लगेंगे वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी रहती है उससे समझ में आ जाता है. इनकम टैक्स के लिए बनाना है तो बेसिकली 4 वर्किंग नोट हमारे इसमें लगेंगे. ठीक है, एक प्लांट एंड मशीन, प्लांट का, एक लैंड एंड बिल्डिंग का, एक इंटरिम डिविडेंड का, एक इनकम टैक्स का. उसके अलावा क्या रहेगा, एक वर्किंग कैपिटल का तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बनेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, क्लियर. तो ये जैसे हमें क्वेश्चन में बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है उससे पता चलता है कि कैसे करना है. ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है, अभी जो मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस का बताया, वो ट्रेंड एनालिसिस के लिए आज आप क्या करने वाले हो, वो जो क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया था, उस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, आज इन सब के कंक्लूजन्स लिखो, ट्रेंड एनालिसिस के स्पेशली, ताकि आपको समझ में आए कि हम ट्रेंड में कैसे कंक्लूजन्स लिखते हैं. प्रैक्टिस इट सो दैट, बिकॉज पूरा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला. दे मे गिव यू लाइक क्वेश्चन लाइक दिस, आई मीन लाइक दिस, कि ठीक है 2-3 साल की फिगर दे दिया, दे मे आस्क यू व्हाट इज द ट्रेंड, is it increasing, decreasing, since it's a MCQ based. So you need to see the figures accordingly. Okay, and क्या रहता है हमारा base year, that is mostly the previous year, which is our base year. Okay, clear. Yes. Okay, in next lecture we will solve with the fund flow and the cash flow statements. Okay, ma'am. Thank Okay. you. And yeah, thanks a lot. Thank you, ma'am. So we will solve this thing. Yeah, in the next lecture we will be covering this aspect, that is the fund flow and the cash flow, and especially the ratios. तो ratios का भी हमें करना पड़ेगा. ratios के लिए चार्ट मैं आपको दे दूंगी, सेम वे जैसे मैंने अभी फंड फ्लो का पहले. ओके. Okay, ma'am. Okay then, bye.